Bismillahirrahmanirrahim. The today's topic is the mitosis, meiosis, and comparison between these two, meiosis and mitosis, and some terminology regarding the embryology, which you should know, which are important for the point of view of examination in OSPE and both in BCQs. These are the objectives. The student should be able to, at the end of this lecture, all these objectives explain what is the term embryology means, meiosis definition, difference between meiosis and mitosis, and different phases of the meiotic division, and results in both sexes. So the first of all, the embryology. Definition of embryology. Embryology is the study of the developmental process which deals with the study of changes occurring in a single zygote to formation of baby during prenatal development. Prenatal mean before birth. Mean when the male and female egg unite together and they form the zygote. And how the zygote is converted into a human body, this study is called the embryology. The human embryology study the human embryo and fetus. मीन ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी से क्या मतलब है, क्योंकि हम ह्यूमन की कर रहे हैं तो पहले एम्ब्रियो होता है, फिर उसके बाद एम्ब्रियोनिक पीरियड क्या है, फीटल पीरियड क्या है, ये मैं आगे चल के बताती हूँ. इसकी स्टडी को हम कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी. प्रीनेटल मीन बिफोर बर्थ, पोस्ट नेटल डेवलपमेंट मीन आफ्टर बर्थ, occurs from birth to the formation of an adult organism capable of reproduction. मीन वो फिर रिप्रोडक्शन के काबिल मीन एडल्टहुड तक. ठीक है. The process of progression from a single cell zygote through the period of establishing organ primordia, the मीन जिसमें ऑर्गन बनते हैं वो कौन सा पीरियड है, फर्स्ट 8 वीक्स मीन शुरू के 2 मंथ, जिसको हम कहते हैं दिस पीरियड इज आल्सो कॉल्ड द पीरियड ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस और पीरियड ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस. And it is also called the critical period because in this during this period the organs are going to be developed. If we take any drug or any other alcohol or any other thing which can cause the hazardous effects on the baby, so this is called the critical period of the development. Now what is the definition of embryonic period? Mean from 4th week of the development up to the 8th week is called the embryonic period, which is I have already told you that this is also called the period of organogenesis or the critical period of organogenesis. What is the fetal period? Mean after 8th week. Mean it starts from 9th week up to the birth, till the birth. Mean what will be the full term birth time, 38 weeks or 40 weeks. This is called the fetal period. It is a time when differentiation continues while the fetus grows and gain weight. What is mean by the tetralogy? The study of embryological origin and causes for these birth defects. Mean study of the birth defects which occurs during the development in the uterus is called the tetralogy. What is the importance of the human embryology? क्योंकि अगर ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी को बंदा स्टडी नहीं करे तो नॉर्मल चीज़ का पता नहीं चलेगा, नॉर्मल का नहीं पता चलेगा तो हम एबनॉर्मल के साथ कैसे इसको कंपेयर कर सकते हैं कि अदर दिस बेबी इज नॉर्मल और एबनॉर्मल. So the embryology is important in understanding how a single zygote develop into an adult being. ठीक है. तो इससे हमें ग्रास फीचर, माइक्रोस्कोपिक एंड न्यूरल मीन नर्व्स की ओरिजिन, ये सारी इसकी स्टडी से पता चलता है. इट हेल्प्स इन इंटरप्रिटेशन ऑफ कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज एंड एनॉमलीज. इससे हमें नॉर्मल का पता होगा तो हम मालूम कर सकते हैं कि भाई ये ग्रोथ नॉर्मल है या इसमें कोई कंजेनाइटल एनॉमलीज आ रही है. These studies are important because they provide knowledge essential for creating healthcare strategies. जैसे कि भी
पर्टिकुलरली हेल्थ केयर स्ट्रेटजीज, इन हम किस टाइम पे हमें मल्टीविटामिन्स देनी है, कितनी हीमोग्लोबिन होनी चाहिए, ये हमें इससे, क्योंकि बेबी की रिक्वायरमेंट अलग होती है, वो मदर से ही लेगा, ठीक है ना। तो मदर की रिक्वायरमेंट बढ़ानी पड़ती है ताकि वो बेबी को प्रोवाइड कर सके। तो बेटर प्रोडक्शन के लिए, रिप्रोडक्शन आउटकम के लिए हमें पता चलता है कि भाई एम्ब्रियोलॉजिकल स्टडी की मैंने अल्ट्रासाउंड में देखा बेबी की लेंथ सही हो रही है, वेट सही बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा, बेबी के बोन्स वगैरह ये स्ट्रक्चर सही डेवलप हो रहे हैं या नहीं, कहीं वीकनेस है तो उसको करेक्ट कर सकते हैं थ्रू मैटरनल डाइट और मैटरनल ड्रग्स। Importance of the human embryology, other importance, we can diagnose the cleft palate, diaphragmatic hernia, spina bifida, congenital heart diseases, अल्ट्रासाउंड करके हम ये चीज़ें क्लेफ्ट पैलेट जो ज़बान पे, लिप पे और इधर हार्ट पैलेट में स्पेस होती है, मीन जॉइन नहीं होते आपस में, ठीक है। डायफ्राम इज बिटवीन द थोरैक्स एंड एब्डामेन, तो एब्डामेन के ऑर्गन एब्डामेन में होने चाहिए, थोरैक्स में नहीं आने चाहिए। अगर एब्डामेन के ऑर्गन ओपनिंग है डायफ्राम में, उसके थ्रू अगर थोरैक्स में आ जाते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, डायफ्रामेटिक हर्निया। स्पाइना बाइफिडा जो है न्यूरल ट्यूब में जो ब्रेन के डिफेक्ट्स आते हैं उसका, ठीक है। द स्टडी ऑफ द एम्ब्रियोलॉजी डेवलप नॉलेज कंसर्निंग द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन लाइफ, इवोल्यूशनरी मिरर, मीन प्री नेटल डेवलपमेंट, हमें मिरर मीन ये सही डेवलप हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट which you should know for this reason the embryology should be necessary, the study of the embryology is necessary. Okay, by this embryology we can differentiate the gross structure, either it is growing normally or how the normal relationship between the limbs and other parts of the body, either it is developing normally or any pathology is going to be done, ठीक है। तो बर्थ डिफेक्ट्स वगैरह को मालूम होता है, ठीक है। तो फिर सम डेफिनेशंस, व्हाट इज oocyte, स्पर्म, ज़ायगोट, या पहले भी पढ़ चुके होंगे फर्स्ट ईयर इंटर में। oocyte, फीमेल जर्म सेल और सेक्स सेल आर प्रोड्यूस इन ओवरीज। स्पर्म, मेल स्पर्म और स्पर्मेटोजोआ और जर्म सेल प्रोड्यूस इन दी टेस्टिस। ज़ायगोट, oocyte and sperm join together union and form a structure called the zygote after fertilization. Gestational age, the childbearing age, a woman when she can produce to a or give to birth to a baby. Physician calculate the age of embryo or fetus from the presumed first day of the last menstruation period. Mean आपको पीरियड्स हुए तो उसका जैसा पहला दिन है उससे वो फिर प्रेगनेंसी के डे को काउंट करते हैं कि भाई इसकी 9th मंथ तक कब जाके डिलीवरी होगी, या फिर 14th डे में जब वो होती है ओव्यूलेशन होती है तो उससे वो एज कैलकुलेट करते हैं। और अगर फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन पीरियड से स्टार्ट किया तो हमारे पास होंगे 40 वीक्स, और अगर कब से किया, एट द टाइम ऑफ द fertilization or ovulation, then the 2 weeks will be deducted and now the weeks will be 38 weeks of the pregnancy. What is the cleavage? अब मेल और फीमेल के स्पर्म यूनाइट हुए, जायगोट बना, ठीक है। अब इसका मतलब है फर्टिलाइजेशन हो गई। अब सारे ये सेल जायगोट ही तो नहीं रहेगा ना, ये फिर ह्यूमन बॉडी बननी होती है तो बहुत सारे सेल चाहिए होते हैं, तो बहुत सारे सेल के बनने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्लीवेज। इसमें बनते जा रहे हैं, इट इज माइटोटिक डिवीजन, ठीक है। फिर व्हाट इज मारूला, जब यही सेल क्लीवेज के 16 to 32 सेल स्टेज में पहुंचते हैं तो हम इनको कहते हैं मारूला। और ये सेल जो बनते जा रहे हैं जैसे 32 सेल्स हैं या 16 सेल्स हैं, इनको हम कहते हैं ब्लास्टोमेर्स, ठीक है। व्हाट इज ब्लास्टोसिस्ट, जब इन ब्लास्टोमेर्स के अंदर कैविटी बन जाए और इट इज फिल्ड विद द फ्लूइड इज कॉल्ड द ब्लास्टोसिस्ट। अब इसकी डायग्राम में आगे दिखाती हूँ, ठीक है। व्हाट इज प्राइमोर्डियल जर्म सेल,
अब यहाँ पे आप देखो कि प्राइमोर्डियल जर्म सेल, यहाँ पे आप देखो ये बेबी की डेवलपमेंट हो रही है, ये एंटीरियर पार्ट है और ये पोस्टीरियर पार्ट है, ये दिस इज द yolk sac, this is the wall of the yolk sac. You can see some cells are present in the wall of the yolk sac. These are called the primordial germ cells. From the wall of the yolk sac, these primordial germ cells shift goes towards the posterior abdominal wall of the baby, and here they will decide here the gonadal ridge is present, and if there is the formation of ovaries, then it means it is female. She will be female. और अगर यही प्राइमोर्डियल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया हो जाते हैं तो then it will be male. Now the common terminology is oocyte, sperms, zygote, gestational age, cleavage. ठीक है, ये अब क्लीवेज यहाँ पे स्टार्ट हो गई, 2 से 4 सेल बने, फिर मार्यूला 16 to 32 सेल स्टेज. अब इस मार्यूला के अंदर जब कैविटी बन जाएगी, नाउ दिस इज कॉल्ड द ब्लास्टोसिस्ट. ठीक है, ये आना चाहिए. नाउ वी आर starting to discuss the meiosis. The meiosis is called the reduction division because in this division the number of chromosomes will becomes from diploid to haploid. 2 divisions, meiosis 1 and it consists of 2 divisions, meiosis 1 and meiosis 2. Fertilization. What is fertilization? The fusion of the sperm and egg to form a zygote, and zygote is fertilized egg is called the fertilization. This is from one cell, female egg, ovum, and this is sperm unite together and form the zygote. 23 number of chromosomes from male and 23 from female join together and form the 46 number of chromosomes. This N indicate the presence of number of the DNA. 1 from male, 1 from female, and now it is consisting of 2 number of the DNA. In meiosis, the homologous pairing will occur. Mean maternal and paternal pair of homologous chromosomes they are similar in shape in size. Homologous chromosome, as we know, the total number of the chromosomes are 23, out of which 22 pairs are autosomes and 1 pair is sex chromosome. Now meiosis 1, the stages of meiosis 1, prophase 1, metaphase 1, anaphase 1 and telophase 1. First of all, the prophase. It is the longest and most complex phase, 90%. मैंने कहा था, एंड में मैंने एक सवाल भी दिया है, राइट डाउन दी डिफरेंट स्टेजेस ऑफ दी प्रोफेस 1. इसीलिए इसके फर्दर स्टेजेस होते हैं जिसकी वजह से ये सबसे लॉन्गेस्ट होता है. इस स्टेज में क्या होगा, क्रोमोसोम जो है वो कंडेंस्ड होंगे, साइनेप्सिस अकर, होमोलोगस क्रोमोसोम्स कम्स टुगेदर टू फॉर्म द टेट्राड. टेट्राड इज 2 क्रोमोसोम्स और 4 क्रोमेटिड, सिस्टर्स एंड नॉन सिस्टर क्रोमेटिड. यू कैन सी ये जो है सिस्टर क्रोमेटिड है, ठीक है. और जब ये यहाँ पे आपस में 2 अलग से कंबाइन हुए होमोलोगस मदर और फादर से, तो ये जो जगह कंबाइनिंग वाली है, नाउ दिस इज द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड. ठीक है, तो सबसे पहले होमोलोगस पेयरिंग हुई, पहले कंडेंस्ड होते हैं इस फेस में, फिर होमोलोगस पेयरिंग स्टार्ट हुई, साइनेप्स स्टार्ट हुआ जहाँ से टेट्राड बन गया, फिर क्रॉसिंग ओवर हुई. ठीक है, क्रॉसिंग ओवर के बाद सेपरेशन इन meiosis will not occur from the centromere. It will occur from where the chiasma formation और क्रॉसिंग ओवर occur. ठीक है, तो ये पूरा क्रोमोसोम एक में चला गया, पूरा क्रोमोसोम दूसरे सेल में चला गया, तो नंबर ऑफ द क्रोमोसोम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. सो द meiosis 1 इज आल्सो कॉल्ड द रिडक्शन डिवीजन. ठीक है, अब प्रोफेस 1 में जब यहाँ पे प्रोफेस 1 ऑफ द meiosis 1, अब यहाँ से ये क्या है, ये जो सेंट्रियोल्स हैं ये इंडिकेट करते हैं, इनके लिए एस्टर्स ये जो बन रहे हैं, ये इंडिकेट करता है कि भाई यहाँ से अगर ये एक हो सेंट्रियोल तो इसका मतलब है कि सेल डिवाइड नहीं करेगा, इसको 2 सेंट्रियोल चाहिए. ठीक है, फिर यहाँ ये दीज आर द माइक्रोट्यूब्यूल्स विच अटैच फ्रॉम द सेंट्रोमेर. ठीक है,
अब इनको इक्वाटोरियल प्लेन में अरेंज होना होगा, तो नाउ द फेसेस ऑफ द प्रोफेस वन ये सीक्वेंस में आए, इनको आप आगे पीछे नहीं करोगे, आगे पीछे करोगे तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेचिटीन, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस। व्हाट विल अकर इन द लेप्टोटीन? कंडेंस क्रोमोसोम्स बिकम कंडेंस, ठीक है। फिर ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में साइनेप्सिस स्टार्ट कर रहे हैं, गोइंग टू बी स्टार्ट द साइनेप्सिस। पेचिटीन में साइनेप्सिस कंप्लीट हो गई और डिप्लोटीन में क्याज्मा फॉर्मेशन हो गया, ये वाला। अब सेपरेशन ये यहाँ पे ये, ठीक है। क्याज्मा फॉर्मेशन में जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है, ठीक है। यहाँ से सेपरेशन होगी, लेकिन ये याद रख लो फीमेल में जो है मियोसिस 1 बिफोर बर्थ स्टार्ट हो गई है, मेल में एट प्यूबर्टी स्टार्ट होती है। तो मेल में जो सेल होता है स्पर्मेटोगोनिया वो अप टू द प्यूबर्टी में माइटोसिस में ही रहता है, मियोसिस में एंटर नहीं होता। तो फीमेल में बिफोर बर्थ ही ये एंटर हो गया है, किसमें? मियोसिस 1 में, ठीक है। अब इस स्टेज में डिप्लोटीन स्टेज में ये फीमेल एग जो है ये यहाँ पे जाके अरेस्ट हो जाएगा। फर्दर ये अपने ये जो बकिया डायकाइनेसिस और प्रोफेज के बाद मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज ये करेगा एट प्यूबर्टी में। तो इसका मतलब है कि ये जो oocyte है जो इस क्याज्मा फॉर्मेशन इस डिप्लोटीन स्टेज में बिफोर बर्थ अभी अरेस्ट है, तो ये जाके प्यूबर्टी में जाके ये अपनी बकिया स्टेजेस करेगा। तो ये कितने साल अरेस्ट रहेगा इसमें? जब तक पीरियड शुरू हुआ, मीन 11 to 12 ईयर्स ये oocyte जो है ये अरेस्ट